Go. Let's go. Rolling. Rolling. So we are recording now. Let's get straight to the point. So we're discussing John Jones today. Yeah. So this is going to be our attempt to deep dive into his fighting style. Uh, any opening comments? And mentality. Mentality? Yeah. I think that plays a big part in his fighting style. जितना भी मैंने इंटरव्यूज वगैरह देखा है उन सब में मेंटालिटी उसका पहले आता है फिर उसके बाद पहले तो नहीं मतलब मेंटालिटी उसका एक मेजर एसेट है अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स. So I have not seen his interviews, but then I was able to, derive some of his mentality through watching his fights. So it'll be interesting. मतलब आपने interviews, you've seen some interviews of him. So ठीक है. So it'll be great to exchange uh, our findings about John Jones. मेरा जो इंटरेस्ट है प्री फाइट पोस्ट फाइट इंटरव्यूज में भी है क्या रहता है जैसे डीसी फाइट में मेरे हिसाब से तो ही बिग ब्रदर डीसी पूरा जैसे उसने फाइट के पहले भी वो देखा था कह रहा था हे पुसी यू स्टिल देयर यस आई एम हियर और उसके बाद फाइट के बाद भी वो रो रहा था वो जो वो पुसी वाला जो है वो फर्स्ट के पहले था कि वो फर्स्ट के पहले था फर्स्ट के पहले था. वो ब्रॉल हुआ था ना उनका जो फेस ऑफ में हाँ. उसके बाद. Sure. So, have you also analyzed his wrestling game and his whatever grappling game? ग्रैपलिंग गेम में मेरे को इतना नॉलेज है नहीं टू बी ऑनेस्ट. स्ट्राइकिंग में फिर भी पिकअप कर लेता हूँ कि क्या कर रहा है कैसे कर रहा है पर ग्रैपलिंग में टेक डाउन्स और डोमिनेट करते ही देखा है मैंने उसको आज तक कभी डोमिनेट होते नहीं देखा. इवन विद डीसी ही वाज डोमिनेटिंग. उससे भी वो ना टेक डाउन हुआ उससे ना हुआ था एक बार बट कंट्रोल नहीं कर पाया डीसी खड़ा हो गया था तभी के तभी. तो ग्रैपलिंग में मैंने तो डोमिनेट करते ही देखा और जैसे गिराता है उसका ग्राउंड एंड पाउंड भी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड एंड पाउंड्स है. The best. The best. The best. Because the way he create those angles for his elbows, even from a close guard, I haven't seen anybody else doing it. So evidently he is a well-rounded fighter, but even for me and for the purpose of this podcast, I have also analyzed more of his striking because there are so many gems, and let's hope. So I've sorted about 5 points, and I'll hope to develop each one of them in our discussion today. So I had a question. I mean, you have already sort of answered it in a certain aspect, but why study John Jones? He's the goat. He's the goat, baby. He It's a certainly is. Good first episode analyzing the goat. And I think he's easy to analyze also. ऐसा नहीं है कि टफ है. उसके जो स्टाइल है वो इजी टू एनालाइज है. उसकी स्ट्राइकिंग भी और उसका रेसलिंग पे तो आप ज़्यादा बोल पाओगे. न्यूली मेड थोड़ा ब्लू बहुत. बेल्ट. नहीं, he does some really good wrestling moves, also foot trips and judo moves, Araigoshi and all that. But yeah, his striking is really something that the way he's able to inflict damage upon others without taking damage himself is something that I think that was my interest to study John अभी Jones. हम क्लास में वो कर रहे थे ना वो वाला ट्रिप Oshotogaris. ओशोतोगारीज. तो वो भी जॉन जोन्स बहुत यूज़ करता है. जैसे ही उसका एंगल कट होता है पैर बाहर जाता है तभी के तभी स्टीपे को भी उसने मारा था और उसका काफ़ी विशियस है. ऐसा नहीं है कि वो आराम से टेक डाउन और क्लोज लाइन ओशोतोगारी है उसकी. बूम. Yes. So I made some points on why I want to study John Jones. Of course, because he's the goat. Second, to be amazed because I watched all of his fights, most of his title fights, title defenses, and also when he won the title.
and his fight IQ is amazing. So I mean, I wanted to be amazed by his performances, so that was another reason for me. Second, to learn something and maybe insert it in my own game. Yeah. That's also a motivation. Another one is to teach my students कि भाई देखो, there are certain things that John Jones is doing, and you can only improve your game. Of course, बहुत सारे क्या बोलेंगे conditions होंगी. हाँ. I mean, it will not be easy to insert his fighting style into your game, but of course there's so much to learn. And finally, I think to the viewers, maybe we come up with a collection of findings that is helpful to whoever is watching. Yeah. Yeah. So before we start, I had a question for you. Okay. So and this is the intersection of MMA and a little bit of philosophy, right? So what is power? So when we say somebody packs power, what is power in MMA context? What do you think is power? तो जॉन जोन्स हमारा आज का वो है ना. हाँ. तो ऑन पेपर और वैसे भी जॉन जोन्स इज नॉट रियली पावर. वन पंच पावर नहीं है उसके पास केओ वाला. एविडेंस मेरे पास जितना मैंने देखा एविडेंस नहीं है वन पंच केओ वाला उसके पास. But what is power? पावर So there is a physics ka definition, which is your ability to transfer power, the rate at which you transfer maximum power. So which is slightly different from strength. Okay, so strength is the maximum force that you can exert, but power is उसको कितना quickly तुम deliver कर सकते हो. Boom. So the one with the maximum strength may not be the most powerful. But then I also wanted to discuss the political aspect of power, right? So there's a famous Max Weber definition for the word, which is it is the ability to impose your will. Now, even in social relationships, nations have power, right? US is powerful. Why? Not because it has strength, right? But it has the ability to, impose their will on the world. Exactly, to boss around. So that's also a definition of power, which I think is very relevant in John Jones' study, because the way he imposes his will, his game plan on others is something which caught my eye. So और ऐसा भी नहीं कि हर फाइट में इम्पोज कर देता है वो. कुछ जैसे थियागो सांटोस और वो कौन था डोमिनिक रेस, उनकी फाइट में पहले 2-3 राउंड तो हार रहा था, और गुस्ताफसन के साथ भी हार रहा था, बट चैंपियनशिप राउंड में जब मैटर करता है देन ही वाज एबल टू इम्पोज हिज विल. तब उसने जो भी पुल स्ट्रिंग्स किए उसके बाद. So he's known for being a dirty fighter, and we'll get to that. But then some of his earlier fights, the way he has dominated some of the very big names of MMA, Shogun, Rampage Jackson, even Daniel Cormier, certainly he has the ability of shutting people down, and that's what I mean when I say John Jones has not just physical power, but then also this mental warfare that is happening. ऐसा हो सकता है कि उसके जीन्स में है, क्योंकि उसके दोनों भाई भी टॉप क्लास एथलीट्स है और छोटा भाई है वो सबसे. मुझे लगता है कि it is through preparation. So the genetic component तो I cannot analyze. जॉन के बारे में पर प्रेपरेशन का वही तो है, वो डीसी को बोल रहा था आई बीट यू आफ्टर अ वीकेंड ऑफ कोकेन. वो सब भी तो चलता रहता है. नहीं, वो तो उसका एटीट्यूड तो वी ऑल नो,
but then he's also known for studying tapes. He's also known for spending a lot of time, strategizing with his coaches. He's known for that as बोल रहा well. था कि मैं सारे पैटर्न्स याद कर लेता हूँ किसके क्या पैटर्न्स है हर एक So, फाइट में इसके भी साथ फाइट हो रही है so let me tie another philosophical idea to this. जैसे हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, knowledge is power, right? So I think he beats people knowledge-wise as well by studying his tapes. He's known for doing a lot of repetitions of techniques. Uh, I'm sure he studies, he identifies the loopholes and the way he's able to capitalize on those loopholes. I think all this makes him powerful, right? और मेरे को ऐसा भी लगता है वो फाइट्स भी करेक्ट टाइम पे पिक करता है इनिशियली नहीं of करता course, था of course. अब तो कर रहा है क्योंकि अब पहले- जैसे स्टीपे मैं पक्का मानता हूँ स्टीपे फाइट तो थी पर वो ट्यून अप फाइट थी यूएफसी में ट्यून अप फाइट्स होती नहीं बट स्टीपे ट्यून अप फाइट थी अब वो सीधा टॉम के साथ आता तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता बट अब वो रिंग रस्ट 100%. And he's able to create this confusion कि Tom Aspinall will do nothing for my legacy, whereas we feel that Tom Aspinall was certainly more dangerous than Stipe Miocic. So he creates this cloud, and who knows यार उसके दिमाग में क्या है. So maybe he's exerting power on the community. pulling strings politician John Jones Yes. new nickname इसका जॉनी बोन से पहले पता है क्या निकनेम था यूएफसी में आने से पहले सेक्सुअल चॉकलेट क्यों? पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइट करता था वहाँ इसको जॉन सेक्सुअल चॉकलेट जोन्स अच्छा ये बता, why is he called Bones? पता नहीं बोनी होगा उन्होंने पता नहीं हाँ मैंने भी कहीं सुना है किसी YouTube वीडियो में because he's so bony and I think Joe Rogan does a good job of reminding people of how skinny his shins are, chicken legs. फुटबॉल भी जैसे मैं खेलता हूँ ना तो सम प्लेयर्स आर डिफिकल्ट टू रफ अप उनको थोड़ा शोल्डर टैकल वगैरह मारने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बोनी बहुत होते हैं उनकी एजेस चुभती है वो थोड़ा सा भी ऐसे करते हैं तो चुभने लगता है आई थिंक इसलिए वो उसकी तो है ही काफ्स भी छोटे हैं उसके एल्बोज भी शार्प है बट उसके जैसा एल्बो कोई नहीं मारता यार उसके जो पॉप आती है उसके एल्बो में Reach है the space that he can create using his long limbs. I mean उसकी जो physiology है he definitely has a reach advantage. You cannot overstate that. लॉन्गेस्ट रीच है ना उसकी अभी यूएफसी में 84 और किसी की नहीं है 6'4" I think. और 6'4" 84 6'4" से लंबा ही होगा वो 1 इंच तो लंबा ही होगा नहीं 6'4" मैंने सुना है. आडेसानिया भी बोलता है कि मैं 6'4" हूँ पर वो जब साथ में खड़े होते हैं जब भी देखा है तो जॉन थोड़ा लंबा लगता है हो सकता है ये झूठ तो बोलते ही है हाइट के बारे में हाइट एज वेट बट मैं ये सोच रहा था जब when I was preparing this so MMA is a sport where they organize themselves in weight categories. So ठीक है reach advantage but क्या करेगा अभी reach advantage है तो है यार but you're in the same weight category. So generally lankier people will have more reach but then stout people will pack a more punching power. So give and take है. Mike Tyson type. Mike Tyson exactly. मतलब दूसरे वेट कैटेगरीज में भी देख लो जो भी थोड़ा सा शॉर्ट बिल्ड होता है he is faster because his punches his strikes have to travel a lesser distance. Ilia Topuria अच्छा एग्जांपल है Exactly. Ilia Topuria और मैक्स हॉलो में कितना डिफरेंस था हाइट. फाइट तो बहुत थी यार मतलब मैं तो मैक्स को सपोर्ट कर रहा था वो वाला था हार्ट एंड माइंड वाला गेम था नहीं यार टुपोरिया he had all the answers I felt. हाँ वही मतलब वो होता है ना हार्ट वाज सपोर्टिंग मैक्स दिमाग इलिया बोल रहा था
तेरा तो हार्ट मैग्रेगर को भी सपोर्ट करता है ना। अभी भी इसको तो ऐसे ही गोट बोल दिया जॉन को। गोट तो मैग्रेगर है। वो मोटिवेटेड मैग्रेगर इज द गोट। मैग्रेगर को भी करेंगे एनालाइज में भी राइट आफ्टर जोन्स, उसका भी बनता है डिमित्रियस। सो आई वांट टू बिगिन बाय सेइंग दैट you've heard ये कोबरा का सीरीज पता है आपको? कोबरा का कराटे किड वाला बंदा। हाँ हाँ। सो उस इन माय ओपिनियन जो कोबरा का डोजो का जो मोटो है, हाँ। आई थिंक दैट gives क्या मोटो है पता नहीं मेरे को। I'll tell. So I think this motto summarizes his fighting philosophy to some extent. I mean, of course, there are many other things. Cobra Kai का है strike first, strike hard, no mercy. नो मर्सी मैन है। नहीं, strike first भी मैन है, and I'll come to that. स्ट्राइक हार्ड तो नहीं करता। Strike hard भी करता है, मतलब उसका कोई भी स्ट्राइक फालतू में नहीं होता। नहीं। he tries to land. He has malicious intent in each one of his strikes. जैसे हवा में वो he doesn't punch the air which a lot of people do. So ये this was also one of my observations. I'll come to that. तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि वो लैंकी है और छोटा स्टाउट बंदा ज़्यादा पावर पैक कर सकता है, तो ये रीज़न हो सकता है क्या इसका वन पंच की होनी है जॉन का? हो सकता है, हो सकता है। पर उसका तो है यार एनगानू का। अबे एनगानू इज 260 पाउंड्स। ठीक है, एनगानू इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। जॉन जोन्स का नेचुरल तो लाइट हेवी वेट ही है। हेवी वेट में ही लुक्स स्लाइटली आउट ऑफ शेप, बट ही वाज नॉट 260 पाउंड्स। आई डोंट थिंक ही वाज। एनगानू तो कट करके 260 पाउंड्स आता है, वो तो 300 पाउंड में चलता फिरता होगा। He's a tank. So I think this strike first, strike hard. This is something that I picked up from watching about 15 of his fights, which is my first point. That he does many things. One of the things that he does is, of course, not all the time. In my analysis, in my assessment, he is good at being first. Now, this is physically, but also metaphorically, in the sense mentally. Even when he's defending, he's first, and he forces his opponent to be second. Right. the brother card. Many things. So, for example, he does a brother guard. He goes for the hand grab, and then सामने वाला सोच रहा है कि hand grab हो रहा है. He throws a knee or an elbow. So he comes here. So he's always first. Is something that I picked up. All his fights, even when he's backing up, so he's in front, he'll back up, he'll take backward steps, forcing the opponent to take forward steps. But then immediately he throws a cross, and he does that. He has done that in many fights. So he's inviting his opponent by taking backward steps, and then he'll take 2 backwards, and then suddenly he'll leap forward. Setting traps, yeah. और दो टाइप के फाइटर्स होते हैं, एक तो रिएक्शनरी होते हैं और एक जो फोर्स करते हैं रिएक्शन देने पे सामने वाले को। तो एक वो बिलाल मोहम्मद की क्लिप है जिसमें डीजे डिमिट्रियस जॉनसन रिएक्ट कर रहा था, जिसपे तो किसी ने उसे जैब मारा। और किसने? पता नहीं किसने मारा था यार, कोई थी उसकी फाइट, तो किसी ने उसे जैब मारा और गुस्सा करके ऐसे मारा रिएक्ट करने लगा, और डीजे भी हंसी आता। Yes. पर जॉन ये कभी नहीं करता, नो रिएक्शंस। उसको अगर पड़ भी रही होती, मैंने उसे कभी रॉक होते भी नहीं देखा। इतनी प्रॉपर मतलब खाए हैं उसने, बट अच्छे भी खाए हैं, पर रॉक कभी नहीं हुआ वो। ऑलवेज इन हिज सेंसेस। ही इज नॉट अ फैन ऑफ गेटिंग हिट। हाँ। In fact, in his interviews, abhi somebody had shared, Rajiv had shared, that he is not a big fan of going hard even in training. He says, why take brain injury? Which I think, again, this speaks to his
मतलब मेंटली ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है, प्लस आगे भी है। मतलब क्या है उसके दिमाग में? ही सच अ dominating fighter. He has such accolades, but then he's also saying that I don't like to get hit much. So बहुत यूनिक है इसका कैरेक्टर। वो कह रहा था कि इनिशियली जब वो आगे आ रहा था यूएफसी में आ गया था आई थिंक, तब कह रहा था कि मैं ऑब्सेस हो गया था पावर ऑफ माइंड से। तो वो यूट्यूब वगैरह पे देखता रहता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन और माइंड को कैसे यूज़ करना है। तो उसमें तो वो है ही घुसा हुआ है। मतलब कुछ फाइटर्स जैसे मग्रेगर का था पहले ऐसा, उसके बाद वो दारू पी पी के स्पाइरल डाउन हो गया। बट इसको पार्टी लाइफ ने भी कभी अफेक्ट नहीं किया, मेंटली ऑन पॉइंट रहता है हमेशा किसी भी फाइट में जब भी आता है। आई डिडंट नो वो पावर ऑफ माइंड में इतना था। दिखता तो है हाँ, क्वाइट एविडेंटली। तो वो ऐसे ऐसे भी करता है ना जब आगे। हाँ, तो कह रहा था आई एम जस्ट शेकिंग इट ऑफ, सारी नर्वसनेस और वो सब हटा रहा हूँ मैं अपनी बॉडी से। फिर उसके बाद अंदर घुसता है उसका वो भी था गोरिल्ला स्टांस स्टार्टिंग का। रैम्पेज के साथ, या फिर सबके साथ काफी, उसने काफी लोगों उसने के साथ किया है। स्टार्ट रैम्पेज से किया था, क्योंकि उसे कह रहा था कि मैं जो भी सपना देख रहा हूँ भाई, ये जो भी मैं सोच रहा हूँ ये मेरे को नॉकआउट ही कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? ऐसे ऐसे करके तो वो अपने ब्रेन को ट्रिक करता रहता है। ऐसा बोलते हैं ना कि कोई नेगेटिव थॉट है तो उसे वहीं के वही पॉजिटिव थॉट से मार दो, तो वो कभी मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। उसमें आई थिंक बहुत सुपीरियर है वो बाकी सबसे। डीसी के साथ उसकी वो भी हुई थी, गुड बॉय बैड बॉय वाली फिलोसफीज की फाइट थी। जैसे उसको प्रमोट किया था कि डीसी अच्छा बंदा है, जॉन बुरा बंदा है। तो जैसे मग्रेगर कबीब की भी फिलोसफीज की फाइट थी कि ये बिल्कुल डिवोट मुस्लिम, कुछ नहीं करता ये, मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने सब जीत लिया है, मैं दारू भी पीता हूँ, ये नहीं करता हूँ। तो फिलोसफी की फाइट थी। डिवाइड मुस्लिम कहाँ से आ गया? कौन? मुस्लिम कौन है? ये खबीब। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, तो ये फिलोसफिकल फाइट थी जिसमें वो बुरा बंदा जीत गया 2 बार, अच्छा बंदा आ गया। बट बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको छोटी चीज़ में सिंप्लीफाई कर दिया था उन्होंने प्रमोट करते टाइम। डीसी मेरे को तो नहीं लगता कभी हरा पाता जॉन को। जब दोनों पीक पे थे, जब पीक पे था तब तो नहीं हरा पाया, सो ट्वाइस। डीसी का पीक था क्या वो? 38 था ना वो? नहीं नहीं, 36 पहली डीसी फाइट का में। पीक थोड़ा लेट ही आया, हाँ, बट ही हैड द बेल्ट, या ही हैड बेल्ट, लाइट हैवी वेट में भी और हैवी वेट में भी, डबल चैंप। आई थिंक सेकंड डबल चैंप आफ्टर मैग्रेगर, हाँ, है ना? हाँ, सेकंड और थर्ड। सेकंड ही था, डीसी सेकंड था। So another point that I like to get to is he's he always has a plan when he's fighting na. So he's always trying to achieve something specific. Okay, whether it is, you know, damaging the lead knee or going to the body, whatever, he always has a plan. I mean, sometimes you watch a fight तो लगता है कि improvisation पूरा मैच नहीं हो सकता, ठीक है? You have to have a plan. And when I was watching John Jones fight, I felt he never stops. He's relentless. He's putting some pace on his opponent, pressure, and he's always trying to achieve something. Okay? And the few times where his offenses are not working, so he listens to his corners, and the corners are also, they tell him exactly what he needs to hear to bring the performance out of him. I've told so many times to my students that pick your corner intelligently, be judicious about picking your corner, but still they fail sometimes. You know, मतलब रैंडम लोगों को चूज कर लेते हैं वन टाइम, पहली बार मिले हैं, just because athletes हैं या better, stronger, higher ranked in the gym, but then you haven't shared mat time or you don't have a chemistry. So my question to you is that
what do you think is the importance of the corner in मेक a और match? ब्रेक है कॉर्नर तो कॉर्नर तो मेक और ब्रेक ही होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर रोंडा राउसी का जैसे वो कॉर्नर में था हेड मूव है, अमेंडा न्यूनेस मार रही थी भर भर के, So ये नहीं कह रहा वैसे उठा के पटक दे, कह रहा हेड मूवमेंट हेड मूवमेंट। तो मेक और ब्रेक है कॉर्नर तो उसको नो डाउट। और अब तो इसने गॉर्डन रायन को भी डाल दिया अपने कॉर्नर में तो। और इसका बॉडी वर्क भी जैसे आप बोल रहे थे ना कि ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू अचीव समथिंग, तो इसका जो बॉडी वर्क है, जो पेस पुट करता है बॉडी पे, टीप्स मार के, नीज मार के, और वो भी मारता है अपर कट्स। और अभी आएंगे स्ट्राइक्स में आएंगे, आई हैव अ होल अनदर पॉइंट फॉर इट। So I just wanted to repeat this point because I think it is worth repeating. Corner is somebody, according to me, a corner is somebody who can bring out the best performance from you. Not your, I mean, most of the times it is going to be your coach, but not necessarily. Not a better ranked fighter, not somebody who has more experience. But even if it is your training partner, your daily training partner, if he can bring out the best in you, that I think is the perfect corner. फ्रेंडशिप का अगर रिलेशन है ना कॉर्नर के साथ, अगर वो बंदा जानता है तुमको अच्छे से, तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है But कि it's तुम्हें not क्या an पुश absolute. करता है। It's not an absolute. So I have an example also. जो हमारा tournament हुआ था, the tournament that you won, in the other weight category, there was a student Shaurya. Rajiv cornered him, right? Rajiv has not coached him. He doesn't know. But then his ability. So that's why I say anybody's ability to bring out the best. Of course, there is some base level knowledge that is required, but the temperament, the IQ, क्या हो रहा है बाहर से, so that I feel is important. So Rajiv cornered Shaurya and Shaurya won his division. They've never trained together. So it's the ability to bring out the best, right? हाँ, कुछ लोगों का मोटिवेशन भी अलग होता है। जैसे सम पीपल आर मोटिवेटेड बाय लव, उनको बोलो कि हाँ भाई ठीक है, सही है सही है ये लव वाला कौन है तू भाई? बढ़िया है। होते हैं काफ़ी लोग होते हैं जैसे, और कुछ लोग होते हैं जो जैसे रोनाल्डो है, वो उसको हेट करो तो वो मोटिवेट किया जो तू चूतिया है, तेरी बस की नहीं है, तू गोल नहीं मार सकता, तो वो और कि अच्छा मैं दिखाता हूँ, अब मैं मार के, तो वो पता होना चाहिए टेम्परेमेंट किसका कैसे। हाईएस्ट लेवल पे तो ये सब चीज़ें भी काउंट करती है, एमेच्योर लेवल पे तो पता नहीं। हाईएस्ट लेवल पे अगर बॉन्ड नहीं है कॉर्नर का और फाइटर का, तो टीम ही है ना, एक्चुअली टीम ही फाइट कर रही है जाके, बंदा तो कर ही रहा है बट एक टीम है उसके पीछे जिसका वो ट्रेन कर रहा है। तो अगर हाईएस्ट लेवल पे उनका कनेक्शन, टीम के साथ कनेक्शन नहीं है, तो जैसे जो लोग जिम छोड़ के चले जाते हैं नए उसमें जिम में, तो हर बंदे के साथ तुम वो नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास भी पहले से प्रोफेशनल फाइटर्स है ही, तुम भी अच्छे जिम में ही जा रहे हो। तो जैसे ये खबीब और इन सब का बॉन्ड इतना अच्छा क्यों है, सारे भाई बड़े हुए हैं बचपन से साथ में, ए आए वहाँ पे भी सब साथ में ही ट्रेन करते हैं, तो ये इनका तो बैकअप भी बहुत अच्छा है। इस्लाम मेरे ख्याल से काफ़ी बीटेबल फाइटर है, वो नॉकआउट भी हो चुका है, काफ़ी बीटेबल नहीं, मतलब बीटेबल है फाइटर। जैसे खबीब का और था इनविंसिबिलिटी का, इसका नहीं है। इसको डस्टिन ने भी धो दिया था थोड़ा सा, और वोकनॉव्स्की ने भी फर्स्ट फाइट में इसको अच्छे मारे थे, तो वहाँ पे कॉर्नर का डिफरेंस आई थिंक वो हो जाता है। खबीब था इसके साथ, तो टेक डाउन लेके जो भी काम डाउन कर देता है वो चीज़ें। वो कह भी रहा था कि खबीब मेरे कॉर्नर में नहीं होता तो मेरे को अजीब फील होता है इस्लाम। तो नहीं, आई थिंक एक्सीलेंट पॉइंट दैट ठीक है, दो फाइटर्स तो फाइट कर रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली टीम वर्सेस टीम। उसका representative वो फाइटर है, बट देयर इज सो मच that has already happened in the gym, and yeah, I think that's an excellent point. All right, so the first one in my 5 pointers, one we have discussed that he has this amazing ability of being first even when he's defending and in offense. So second point that I feel uh, that was glaringly evident to me was his ability to shut down his opponent's offense. And he uses certain tools to do that.
So what comments would you like to make? Do you think he shuts down his opponent's offense? तो जब वो शट डाउन नहीं कर पाया है, मैं उसके बारे में, हाइट और रीच जब थोड़ा सिमिलर था तब उसको शट डाउन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी इनिशियली. जब Definitely. हाइट रीच सिमिलर नहीं होता है तब वो इज बेस्ट यूज ऑफ रीच जॉन जोन्स का है यूएफसी में. बेस्ट यूज वही करता है अपनी रीच का. जब वो नहीं होती तो थोड़ा उसको प्रॉब्लम हुआ था, बट फिर वो मेंटली और बाकी सारी चीज़ें प्ले कर जाता. उसका बॉक्सिंग तो मतलब not the best. डिसेंट है. Not the best, certainly not the हाँ. best. But his other strikes. So in my study, लॉन्गेस्ट लिम्स हैं जो उसके, longest limbs hai. वो अच्छे से यूज़ करता है. So one is that he's very unorthodox in the sense he keeps switching stances. He can fight southpaw as well as orthodox, and he keeps switching also. He's good at switching levels. He's good at switching tempos. Now let's for example let's just discuss his leg kicks. Okay, so generally क्या होता है, लोग leg मारते हैं या body मारते हैं या head मारते हैं. But in John Jones' case, I feel after watching his fights, he has 10 other positions. So head में he can come up top also. He has thrown axe kicks also a few times. ठीक है, ऊपर से भी आ रहा है, वो सामने से भी आ रहा है. He throws side kicks to the neck. ठीक है. नेक. He has thrown side kicks to the neck, chest area. स्टीवी को भी मारी थी अभी उसने खिंचा के. ठीक है. He has front kicks, devastating front kicks. Not teeps. I think he prefers to throw front kicks जो जो ribs में जो dig ब्रो, होते हैं. ये अभी मैं वीडियोस देख रहा था ना इसकी. तो माइकल जे वाइट पता है आपको? वो हाँ पता है, वो मूवी स्टार. इसको फ्रंट किक उसने सिखाई है, ये वाली जो ये मारता है. मैं आपको भेजूंगा वीडियो. बिना टेलीग्राफ के जो ये मारता है ना, यहीं से उठा के. और जो आप क्लास में भी बता रहे थे कि इट्स लाइक अ राउंड हाउस बट टोज डिग इन करते हैं. एग्जैक्टली वही कि किसने सिखाई थी इसको. उसके बाद से ये इम्प्लीमेंट करने लगा. उसके बाद इसने अपना टच तो डाला ही है थोड़ा इसमें, बट माइकल जे वाइट सीख के ये मार रहा है यूएफसी में. नहीं, अच्छा है. माइकल जे वाइट लेजिट है, मतलब ही नोज मार्शल आर्ट्स. ही इज नॉट लाइक वो एक और है ना, कौन, स्टीवन सेगाल, तुझे पता नहीं होगा. उससे तो बेटर ही है माइकल जे वाइट. कुंग फू मास्टर. So coming back to the point, I feel he has this unique ability of mixing all these strikes. So we were talking about leg kicks. Leg kick इसके पास एक दो नहीं है, इसके पास कम से कम 10 है. ठीक है. And generally he targets the lead knee, and for obvious reasons, to compromise your opponent's mobility. Dirty fighter. Dirty क्या है? बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा यार. Legal है. मुझे तो सही, तो मेरे को तो वो भी सही लगता है, आँख में उंगली मार देता है. Anything goes, man. We will come to that. I have a small section on his eye pokes, but let's just elaborate on his leg kicks. ठीक है. He has the oblique kick. ठीक है. And he stomps on your lead kick. ठीक है. मतलब everybody knows it is coming, but still एक दो तो वो हर फाइट पे मार ही देता है. और ये ओशो तोगारी भी लेग किक के साथ ही वो करता है सेटअप. तो वो ओब्लिक किक मार रहा है, फिर उसके बाद एक इसने पता नहीं अजीब सी किक मारी थी साइड से ऐसे. नहीं तो क्लिंच से मारता है वो. मतलब when जब थोड़ा सा क्लोज है ना, तो साइड किक टू द इनसाइड लेग मारता है. इनसाइड लेग, ताकि आपका नी इनसाइड से मतलब बाहर की तरफ बकल हो. अमेजिंग. पर मैंने एक दो क्लिप्स देखी थी जिसमें आउटसाइड से भी वो क्लिंच वाली रेंज में ही आउटसाइड से भी मार रहा था, बट वो ओशो तोगारी सेटअप करने के लिए था. उसने पैर थोड़ा इधर किया, उसके बाद किसके साथ? बॉनर था, कौन था, बहुत पहले की फाइट थी. मतलब वो सेटअप भी करता है. बाकी लेग किक के साथ वो जैसे सिंपल लोग क्या सिंपल सेटअप ही होता है कि लेग किक मार रहे हो, जब उसे नीचे की आदत होगी तो ऊपर मार दो, या फिर लेग किक पंच जो भी है, पंच लेग किक. पर ये ट्रिप्स वगैरह भी सेटअप करता है.
नहीं, बहुत बहुत डायनामिक है यार. सो हम्म, वो मैंने ये देखा कि वो एक स्ट्राइक बार बार नहीं मारेगा. हम्म, ही विल कीप चेंजिंग. सो जैसे आपने बोला कि हम लेग किक मार रहे हैं, लेग किक मार रहे हैं, जनरली हम कंडीशन करते हैं कि नीचे जा रहा है और फिर सडनली वी स्विच लेवल्स. बट विद जॉन जोन्स आई फेल्ट दैट ही स्विचिंग आफ्टर एवरी स्ट्राइक. वो दो कंसेक्यूटिव स्ट्राइक्स उसके सेम नहीं होते हम्म. जनरली स्पीकिंग. पहले इनसाइड मारा उसने, फिर ओब्लिक मारा, फिर ऊपर जाएगा, फिर फ्रंट जाएगा, फिर टर्निंग भी साइड किक मारता है, मारेगा. टर्निंग बैक किक, हाँ, टर्निंग बैक किक्स भी है उसके पास. वो बहुत अच्छी मारता है. हम्म. स्टीपे को ऐसे ही तो गिराया था उसने, केओ वाला. सो मैंने जस्ट लेग किक का एक लिस्ट बनाया था. हाँ. ही थ्रोज द रेयर ओब्लिक किक्स फ्रॉम बोथ लेग्स. हम्म, ठीक है. Then he has the lead side kick, which हम्म, sometimes he shuffle, sometimes he hops. तो हम्म, lead leg से सामने वाले के lead leg में. So this is when he's orthodox. Uh, then he has rear leg side kicks. Rear leg side kicks भी मारता है. Lead leg से भी मारता है, rear से भी मारता है. Then he has जो clinch side kick बताया. Clinch में he'll throw a side kick to the inside of your knee. I've never seen anybody do that. Then he has your normal. Then he has your normal roundhouse kicks to the calves, to the knees, to the thighs. Then he has inside leg kicks. I mean, सिर्फ leg kicks में इसके पास कम से कम 10-12 options है. And then he keeps switching from these. Consecutive नहीं मारता वो. I think that's a great ability. अगर स्पैम भी तो करते हैं. spam. साउथ पॉ में जाके किक्स ही स्पैम करता रहता है, फ्रंट लेग. डीसी यही बोल रहा था कि भाई ये तेरे को क्या लगता है, तू मेरे को हेड किक मार के नॉकआउट करेगा. हेड किक ही मारा जाते ही. हाँ, हेड किक से तो गया वो. हेड सेटअप किया किक, था उसने पूरा. हेड किक, उसके बाद ऊपर ऊपर दिखाया, फिर लेग किक मार के घुमा दिया इसको. भाई चक्कर. बहुत स्ट्रेटेजिक है हाँ. जॉन जोन्स. जो लास्ट फाइट में स्टीपे मियोचिच के साथ, आई थिंक आफ्टर सेकंड राउंड जब कॉर्नर में गया, कॉर्नर बोला तब हम्म, कि the question mark kicks are opening up, हम्म, which means he was setting it up for 2 rounds by throwing to the body. ठीक है. हम क्या बोलते हैं, पहले 3 मार और फिर चौथा होगा. हाँ. But he was setting it up for 2 rounds, and he didn't even use that question mark kick. I don't think he did in the Stipe Miocic fight. But then this is the level of इसको strategic depth ही बोलेंगे यार. मतलब उसका विजन जो है, कब मतलब फर्स्ट राउंड सेटअप किया, सेकंड राउंड सेटअप किया, अब कॉर्नर आगे बोल रहा है कि खुल रहा है. कितने ऑप्शंस है उसके पास. आइडियाज, आइडियाज ही दे सकता है कॉर्नर भी. वो भी बात है. खबीब के फादर का कोई इंटरव्यू था, अब्दुल मनाफ का, तो उसमें वो कह रहा था कि भाई इसको, जॉन जोन्स को, कौन है इसका मेन कोच, कौन है? जोन्स का हाँ. वो विंकल जैक्सन हाँ, समथिंग. कह रहा था कि जैक्सन ने थोड़ी इसको लड़ना सिखाया है, वो तो गॉड गिफ्ट है इसके पास. तो ये जो भी स्किल्स है इसकी गॉड गिफ्ट है, वो बस उसको स्ट्रैटेजी दे सकते हैं. इसके पास ये जो भी एल्बोज मारता है, नीज मारता है, पंच मारता है, जैसे भी मारता है, डिस्टेंस, इसका मैनेजमेंट, तो वो सब गॉड गिफ्ट है इसके पास. वो कोई सिखा नहीं सकता किसी को, तुम बस स्ट्रैटेजी दे सकते हो ऐसे बंदे को. तो कॉर्नर और फाइटर का ये भी एक. क्योंकि जैसे हॉली होम्स भी सेम जिम से है, हम्म, बट शी इज नॉट डोमिनेटिंग. वो हारती है. हाँ. तो हाँ, डेफिनेटली जॉन जोन्स के पास कुछ यूनिक तो है, हम्म. मतलब मेंटली स्पीकिंग. मेंटली, स्किल्स, हाइट वाइट, जहाँ बड़ा हुआ है, जिस फैमिली में बड़ा हुआ है, उसके भाई सारे ए ग्रेड एथलीट्स. तो कह रहा था कि मेरा चैंडलर जोन्स है ना, जो उसमें मेरे से भी बहुत ज़्यादा, मेरी रिस्ट ऐसे पकड़ के उठा लेता था मेरे को. उसका बड़ा भाई. उसकी मतलब सारी चीज़ें फैक्टर इन करती है, प्लस हाइट, रीच, जो मतलब सब कुछ ही है उसमें. हाइट रीच से मेरा भी. सो बेसिकली हिज रेंज कंट्रोल, आई थिंक, जिसमें आई पोक्स भी आता है. ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फैक्टर इन हिज फाइटिंग. हिज मतलब कैसे, तू बता, ये लेग किक्स वाला गेम जॉन जोन्स की इम्पोज कर देता है, वो सामने वाला भी नहीं कर पाता. सामने वाला क्यों लेग किक्स नहीं मार रहा उसको. एक तो वो चेक कर लेता है, रीड कर लेता है वो बहुत जल्दी. रीड कर लेता है. हिज अवेयरनेस ऑफ रेंज
ठीक है, दैट्स व्हाई आई फील रेपिटेशंस, वो जिम में सिर्फ पैड्स में नहीं कर रहा है, वो जिम्स में रेंज की भी रेपिटेशंस निकाल रहा है कि किस रेंज में मैं कौन सा स्ट्राइक मार सकता हूँ। इस पे किसी ने लेग किक्स नहीं मारे क्या? गस्ताफसन ज्यादा ने नहीं मारे मारा थे यार, मेरे ख्याल से। नोबडी। किसी ने नहीं मारे। जो ये करता है हाँ, लोगों के नीज के साथ, nobody else has able is able to return that favor. बट काफ़ी सारे लोगों को लेग किक्स मारना पसंद भी नहीं है इन जनरल, क्योंकि मारते टाइम अपने आप को भी लगती है। मग्रेगर यही तो बोल रहा था कि डियाज की फाइट के लिए उसे स्पेसिफिकली ट्रेन किया था लेग किक्स में, कि भाई अब मैं, इसकी वीकनेस है लेग किक्स। इसको पेटिस ने हराया था शायद लेग किक मार के, आप पता नहीं किसने हराया था। किसको? दियाज को? डियाज को। पेटिस ने, आई डोंट थिंक पेटिस दियाज को हरा चुका है। आरडीए ने हराया था फिर शायद। हाँ, आरडीए ने शायद लेग किक मार के हराया, जो भी है, जिसने भी हराया उसको लेग किक मार के। तो मग्रेगर ने वो स्ट्रैटेजी फॉलो की, पर उसके बाद कह रहा आज के बाद नहीं मारूंगा मैं लेग किक। भाई मेरी टांग टूट गई मार मार के। तो वो भी थोड़ी स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको उस एरिया में स्पेशलाइजेशन होती है लेग किक मारने में, जिनको विदाउट हर्टिंग देमसेल्व्स दे कैन इम्पोज देयर लेग किक्स दूसरे बंदे पे, दूसरे बंदे को डैमेज कर दे। बट जॉन जोन्स ऐसे मारता है कि वो ज्यादा हर्ट भी नहीं होता। सो इसलिए ऑफ शायद कोर्स वो चेक होते हैं। यूज करता है ज्यादातर हाँ, ओब्लिक्स। और ये ओब्लिक्स में कोई डैमेज नहीं है, नहीं है। साइड किक्स में कोई डैमेज नहीं है, फ्रंट किक में ज़्यादा डैमेज नहीं है, शिन ऑन शिन बेसिकली उसमें डैमेज होता है। बट जब आप 10 फेंक रहे हो उसमें से एक राउंड हाउस है, ठीक है, तो वैसी प्रोबेबिलिटी कम हो गई। प्लस वो राउंड हाउस आप चेक होने वाली है उसकी भी बहुत, ही थ्रोज राउंड हाउसेस टू द शिन टू द काफ्स, मतलब नॉन स्टॉप मारता है, जैसे आप स्पैम कह रहे थे, उसमें से एक आध कुछ चेक्स होती हैं आई फील। इसका पेन टॉलरेंस भी बहुत हाई है। जैसे इसका टूट गया था ना टो मिड फाइट, उसको पता ही नहीं था, एंड तक ही नहीं पता चला था मेरा टो टूट गया है, लड़ रहा था। हो सकता है पेन टॉलरेंस। तो इसको पढ़ते भी है तो भी मतलब दिखाता नहीं है, रॉक नहीं होता, कंपोज्ड। मैंने कभी इसको भाई हिलते ही नहीं देखा बंदे को, और इसने खाए हैं अच्छे खासे खाए हैं। इसका गुस्ताफसन ने तो इसको अच्छे से फोड़ा था, उसके बाद भी। फर्स्ट वाला तो हाँ, उसके बाद भी रहता ही है, कंपोज ही है पूरा टाइम। वो भी स्किल है, एक स्किल तो क्या, गॉड गिफ्ट है वो भी। कुछ लोगों का टॉलरेंस ज़्यादा होता है। कौन कह रहा था देख यार, इट्स स्ट्रेंज, पता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का टॉलरेंस ज़्यादा होता है, बट you can only ever know what you feel. सामने वाले को क्या फील हो रहा है वो, मतलब it's a mystery again. I mean, this is perhaps a discussion for another day, but it's really difficult to know कि सामने वाले को कितना पेन हो रहा है. It's, I mean, impossible. If you're doing let's say 50 push-ups or 100 push-ups, जो the will it takes, the pain को overcome what you feel, I can never, I can make some guess कि इतना हो रहा होगा, इतना हो रहा होगा, but I will never know it exactly. When I finish a marathon, only I know what I feel, right? So again, आप बोल रहे हो पेन टॉलरेंस है, बट या हु नोस, उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक मैंने आपको शायद बताया था ये कि यार याद नहीं आ रहा किसने बोला था, कह रहा था कि अगर जो बंदा बचपन में अडल्ट से पिटा हो, या फिर कोई सिग्निफिकेंटली ओल्डर बंदे से पिटा हो, और उसके बाद उसे तुम इक्वल साइज के बंदे के साथ लाके खड़ा कर दो फाइट में, और वो उसे मार रहा है, तो सेम एक मेंटली वो हो जाता है, टॉलरेंस अपने आप बढ़ जाती है पेन की। अगर तुम सेम वेट सेम हाइट बंदे के साथ लड़ रहे हो, और तुम जो पहले लड़ चुके हो किसी स्ट्रॉन्गर, वे मोर स्ट्रॉन्गर, जिसको तुम ओवर पावर कर ही नहीं सकते उस बंदे से, तो मेंटली चेंज हो जाता है सब कुछ। ये तो खैर एक्सपीरियंस बेस्ड हो गया, हाँ, बट आई थिंक पेन टॉलरेंस इज मोर टू डू विद genes. I mean, I can't say for sure, but some people are just
होते हैं यार, I mean, लड़कियों को भी बोलते हैं, लड़कों से ज़्यादा होता है उनका पेन टॉलरेंस, हाँ, मैराथन वगैरह में बर्थ वो देते टाइम। चाइल्ड बर्थ की वजह से, हाँ हाँ, दिस रिमाइंड्स मी, लड़की ने ही मुझे बोला है क्या कि उनका पेन टॉलरेंस ज़्यादा होता है। तो कांट टेक हर वर्ड्स। so range control, of course. So his hypox is a great. He has weaponized his long guard very efficiently to manage distance, and one of that is his eye pokes, which he's infamous for. So उसका एक इंटरव्यू भी था, उसे वो बोल रहा था कि यार आई ट्राई टू पोस्ट माई हैंड ऑन देयर फोरहेड, वो कभी कभी so, झूठ। झूठ। तो वो बोल रहा था कि टू से दैट आई डू इट ऑन पर्पस हम्म, इज इनएक्यूरेट, हाँ, ऐसा कुछ बोल रहा था. ऐसे थोड़ी करते हैं, पीछे जाते डर। But yes, he does that in almost all his fights. और कोई तो maybe we were discussing this in the gym or maybe some interview, बोल रहा था कि यार जब पहली बार होगा तो वार्निंग मिलेगा, तो एक बार तो करना बनता है. ये ले, बहुत दर्द होता है यार, आपने मारा था मेरे को आई पोक। बहुत टाइम लगता है रिकवर करने में भी, ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट भी कम होते हैं मेरे ख्याल से। पर वो तो अब लड़ना पड़ता है फाइट में, वो तो टफ इट आउट करना पड़ता है, बट पूरा मेरे ख्याल से तो चलता ही है एंड तक। और उसके बाद फिर से पड़ रहे हैं, आँख में मुक्का जा रहा है जा रहा है। आईपॉक्स से रिकवर करना भी टफ होता है, एक बार किसी को मार दिया तो सिग्निफिकेंट एडवांटेज है फाइट में। जस्टिन गेची वाली फाइट में भी जब मैक्स ने पहले उसकी नाक, पहले आईपॉक मारा फिर नाक तोड़ दी, तो वो तो खत्म ही था उसके बाद। रिकवरी नहीं कर पाया, कभी वापस ही नहीं आ पाया। किसी की आँख खराब कर दो तो कैसे फाइट करेगा। वो जो रोगन बोलता है ना that IPOX should straight away be a point deduction, which I think makes sense. फिर क्योंकि yes, you're right, पूरा एक तरीके से फाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. वो तो टफनेस है फाइटर्स की कि they want to still compete. But yes, again, his range control and his ability to make reads, like you said, his use of his long guard, his eye pokes, so it basically results him in controlling range better than his opponents. So that was the third point in my analysis of John Jones. There is also one point that I would like to develop further is his pressure. Right? He likes to throw long range strikes, so kicks se start karta hai. He's basically spamming kicks, and also when he's at fighting distance, when he's one step away from the fighter, making one step away from making contact, I think he utilizes his jabs and crosses more than his looping shots. And another thing that I noticed is that he throws single strikes quite a lot. He's switching between his strikes, but he throws a lot of single strikes. He throws a strike, he takes a second or a couple of seconds to pause, and then he's at it again. No combinations. And matlab he throws a few Rarely, combinations, but sparingly. And I feel that's why he can pressure, because he's never over exerting. ओपन कम होता है, फिर कॉम्बिनेशन जब बंदा मारता है तो ओपन हो जाता है थोड़ा। Exactly. So यही मैं सोच रहा था कि ये सिंगल स्ट्राइक्स फेंक रहा है, is it by design? Because if you just keep throwing a strike, you have a second to recover, you throw another, spam करो, अलग अलग angles, अलग अलग levels, अलग अलग strikes, but then you're never passing that point in terms of cardio where you'll start feeling fatigue. So that's I think his this is by design, that he's able to put pressure on his opponents. मे बी बाय डिज़ाइन, मे बी नेचुरल गेम है, क्योंकि पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं भी स्पार कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो
मैं भी सिंगल स्ट्राइक प्रेफर करता हूँ जब तक बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन के लिए ओपनिंग नहीं है ना, तो अगर कोई बैकडअप है बिल्कुल दीवार के पास है तब 2-3 कॉम्बो यूजुअली मैं लीड नहीं करता कॉम्बो के साथ, या फिर जब तक बिल्कुल ही खाली ओपनिंग नहीं होती सिंगल स्ट्राइक। तो मे बी अभी बाय डिज़ाइन मे बी नेचुरली, पता नहीं। मुझे लगता है इट इज बाय डिजाइन। हम्म, ऑफ कोर्स व्हाट यू सेइंग वो नेचुरल गेम के साथ सिंक में होना चाहिए। हम्म, अभी रिसेंटली हमने एक इन हाउस टूर्नामेंट किया था, हम्म, उसमें देयर वाज अ स्टूडेंट नितिन, हम्म, he was getting tired because he was throwing combinations. हम्म, So then I was able to connect the dots with John Jones study जो मैं कर रहा था कि is he able to put that kind of a pressure और against आई his थिंक opponents. मेंटली भी अगर आप कर रहे हो तो वो रहता है कि अब ये कॉम्बो मारना है, जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो ये कॉम्बो प्रैक्टिस किया तो ये मारना है, ये मारना है, तो पिक योर शॉट्स। जब जॉन ये करता है शॉट्स पिक करता रहता है अपने, जैसे ही कुछ मिला स्पेस बूम बूम बूम। और रेसलिंग के बारे में तो वैसे हाँ बोलो, आप क्या एक्सपैंड करो इस किसके पॉइंट बारे में? ये प्रेशर वाले पॉइंट पे। नहीं, सो मुझे लगा कि उसके फोर्थ फिफ्थ राउंड में he becomes competitive because he has really paced himself. उसने ओवर एक्सर्शन नहीं किया है, which I feel his opponents को पता नहीं है क्या, I'm not very sure, but then my reading is that this is by design and that is how he controls his gas tank. He paces himself, he forces people to use longer combinations on him, therefore expending more energy, whereas he can pick them apart using single strikes. And of course, if there is an opening, then he goes for combinations, but mostly he throws single strikes a lot. And those single strikes are lethal. हवा में नहीं मार रहा है वो, so he's changing everything. He's varieties of जो strikes है उसके पास, he has a huge variety of strikes, and that's how he's picking him apart, which conserves energy as well. So that was my finding of his fighting style. All right, that was the third or fourth point. The next one in my list is that he throws everything with uh, malicious intent. Even the eye pokes. Eye pokes, knees. एल्बोज का तो उसने अल्टीमेट फाइटर पे बोला है भाई अपने मुंह से क्या? कि ये चाहे कितने भी बड़े फाइटर हो यूएफसी वगैरह, इन्होंने अपना मोस्ट ऑफ देम ने कभी अपना खून देखा ही नहीं है, तो स्लाइस करो, निकालो, कट मारो उनको, एल्बोज यूज करो। और वो जो कोचिंग भी दी है ना उसने ऐसी ही दी है कि खोल दो इसको, मिलिशियस इंटेंट वाली कोचिंग दी थी उसने, जो भी दी थी अपने बंदों को। मतलब वो बंदा, उसका मेंटल स्टेट कैसा होगा कि because sometimes we treat this as a sport कि मुझे उससे जीतना है. In the gym I'm often repeating that this is not a competition. Try to beat them tactically or strategically, don't try to hurt them. But यहाँ पे ये बंदा है, to win he will do whatever it takes. This is a mindset. I think to throw a strike in order to cause as much damage as possible, इस mental state में आना, that's why uh, nobody can be John Jones. ये अलग ही है, अनोखा ही है types. Is there any other fighter that you feel also throws with malicious intent like John Jones? टपोरिया मारता है, खिंचा के मारता है, वो तो घुमा के मारते तो सब है, बट इसका थोड़ा डिफरेंट है ये, मतलब ये हर्ट करना चाहता है। ऐसा कुछ फाइटर्स ऐसे भी आते हैं स्पारिंग मेंटालिटी से कि निकाल लेंगे, जो यूजुअली रेसल करते हैं वो ग्राउंड एंड पाउंड भी नहीं करते इतना, ये रेसलिंग भी करता है, तो इसका कभी ऐसा नहीं लगता कि टाइम वेस्ट हो रहा है कि रेफरी आके उठा दे रहा है कि भाई चलो उठो। ये अगर ग्राउंड पे भी है तो वहाँ पे भी पूरा टाइम एल्बोज स्ट्राइक्स, नहीं तो कोई सबमिशन, गिलिटीन भी बहुत देता है ये। अभी
देखा था मैंने 5-6 फाइट्स में। गिलिटीन्स हैं इसके पास। और वो इसको बट है मचाडो इसकी क्या नाम है उसका? मचीडा, मचीडा को तो सुला दिया था। उसको तो जान से मार दिया था। वो तो डेथ थी। तो डेथ फिटनेस की थी। सो कोई स्विच होगा क्या? समटाइम्स आई वंडर कि कुछ आ गया, जैसे कुछ स्ट्रीट में कुछ हो गया, ये जॉन जोन्स तो मार ही देगा किसी को। हाँ वो तो एक उसका कुत्ता भी है, गन्स भी चलाता है वो तो प्रिपेयर्ड है उसके लिए, अपोकलिप्स के लिए, कि ज़ॉम्बी वॉम्बी आ जाए बस कहीं से। अरे खत्म कर दो। होता होगा, इस बोल तो रहा था आई एम अ बैड गाय ट्राइंग टू बी गुड। किसी ने पूछा था आर यू गुड गुड गाय और बैड गाय, कहता है मैं बैड गाय ट्राइंग टू बी गुड। तो वो तो है ही इसका मेंटल स्पेस, कहता हुई कोकेन खींचने वाला बंदा। गन्स भी चलाता है, इसका कुत्ता भी वैसे वाला है जो पुलिस वालों के पास नहीं होता, ये ऐसे ऐसे घूम के। बेल्जियन मैलेनोआ टाइप। हाँ, ऐसे चुटकी बजाई तो काट लिया किसी को। ऐसा कुत्ता है इसका। सही है यार, अपने को भी चाहिए वैसा कुत्ता। वैसा गार्डन हो तो रख सकते हैं, बट पिटबुल रखना है यहाँ पे घर में, बाकी तो बाल छोड़ेंगे सब, ऐसे खतरनाक डॉग चाहिए। पिटबुल्स तो बैन हो गए इंडिया में। क्या कुछ बैन दे नहीं कैन है नॉट बी ट्रेन, दे हैव अ जेनेटिक फ्लॉ। पिटबुल्स। हाँ, जिसमें नॉर्मल सब हंसा, सब एवरीथिंग इज नाइस, बट देन कुछ हो जाता है उनका, हाँ, दे बिकम ब्लड थर्स्टी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बैन कर दिया ना इंडियन गवर्नमेंट ने मैंने सुना है पिटबुल्स। उनको अगर अच्छे से भगाओ भगाओ थका के रखो तो ठीक रहते नहीं, हैं। उनका कुछ है, सब सही रहता है, ठीक है, बट ऑल ऑफ अ सडन दे विल बाइट देयर ओन ओनर्स और द चिल्ड्रन इन द हाउस। ऐसा बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस है, यूट्यूब में देख लेना। मैं पाल नहीं रहा वैसे। फिर तो गली का कुत्ता ही बेस्ट है यार, इंडी डॉग। स्मार्ट भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्मार्ट वो होता है, दरवाजा वगैरह खोलना देखिए क्या। एक कूल कैट था ना अपने पास। कैट्स भी अच्छे हैं, डॉग्स भी अच्छे हैं। कैट्स कैट्स मेरे को रिसेंटली पसंद आने लगी है, चिल है कैट्स। चिल है डॉग्स, ओबीडिएंट है, लॉयल है, बट आई सपोज दे ज्यादा टेंशन रिक्वायर अ चाहिए लॉट यार। ऑफ एनर्जी आल्सो। हाँ, कैट्स का घूमती रहती है अपने, टॉयलेट भी खुद चली जाती है। हाँ, तुझे कैसे पता ये सब? हाँ, जानता हूँ मैं लोगों को जिनके पास कैट्स है। समझ गया मैं। So the very last point in my list was his use of taekwondo, हम्म, and this is not your point scoring taekwondo. This is again मैंने किया malicious. है। पॉइंट स्कोरिंग मैंने किया So, yeah. है। So पॉइंट just his स्कोरिंग तो गे है थोड़ा सा ताइक्वांडो से, किक्स भी स्लैप है बस, और रोक देते हैं तभी थोड़ा सा कुछ होता है, पंच भी चेस्ट पे ही है, मतलब वो ठीक है, मार्शल आर्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है, किक्स के लिए अच्छा है, बट वो मुay थाई वाली पावर नहीं है किक्स में। but Muay Thai में spinning kick नहीं है. I don't think so. Spinning kick है. Spinning kick taekwondo से आता है. हाँ अभी last fight में वो बोला था कि he finished the fight using a spinning back kick, right, on the spleen. हाँ So I think post-fight interview he said he gave credit to his taekwondo coach, and he said thrice a week, once 1 hour every session, I've been practicing these kicks, these spinning back kicks, how to land them. That's where I feel he outworks his एक्स किक भी तो opponents. वहीं से आता है ताइक्वांडो Axe से। kick is a taekwondo kick. हाँ, आपका normal front kick is also a taekwondo kick. पर Muay Thai में तो tips ताइक्वांडो होता है. वाला फ्रंट किक वो है पुशिंग। किसमें? ताइक्वांडो में, नहीं, ताइक्वांडो नहीं. में पुशिंग सिखाते हैं, ये वाला नहीं सिखाते, टो वाला। मेरे कराटे कोच ने तो सिखाया. वो कराटे है। नहीं, so again credit to my karate coach. He was a UFC fan then, हाँ, about 15-20 years back. तो कराटे वो लीथल वाला सिखाता था, and also it depends on मेरे your को ये coach. स्पिनिंग वगैरह इसलिए तो आता है, मैंने ताइक्वांडो किया था क्योंकि 2-3 साल, तभी तो मैं बैक किक और वो सब मार देता हूँ, नहीं तो मेरा क्या लेना देना है। नहीं, पर so- राउंड हाउस तो भाई डेफिनेटली मुay थाई वाली बेस्ट है, उस वैसी पावर लेग नहीं, so देखो taekwondo को because it is an Olympic sport and competitive sport, so the lethality has been reduced. But then when you use the same techniques in MMA,
where you're not pulling back your kicks, Hmm. then they become lethal, Hmm. right? When you're thinking about causing damage, when thinking about chopping your opponent's leg, the same techniques, instead of just pulling them back, you go all in. क्योंकि वो So they become lethal. स्लैप किक भी बोलते हैं उसको, बोलते Slap ही kick. स्लैप किक है, हाँ. ऐसे करके वापस वो ऐसी है But हम जब सीख रहे थे, our coach used to say, just go through your opponent. Go through your opponent. आपका तो लीथल था coach। बस कोच था वो. मेरा कोच भी मस्त था यार वैसे। Pradeep, Mr. Pradeep. I don't know where he is, but I'd like to get back and train again with him. Yes. So I had made a list of his strikes. I'll just quickly run through them. Fighting distance, which means when he is slightly at a distance, he starts with his kicks. We have discussed all his leg kicks. Then he has the same amount of varieties when he goes to the body. Front kick maar raha hai, roundhouse maar raha hai, side kicks maar raha hai to the body. Then he kicks the neck also. We've discussed he throws axe kicks also. He has spinning kicks. He has roundhouses, of course. जो basic roundhouses. स्पिनिंग एल्बोज, यूजुअल एल्बोज, नीज। So mid range में punches तो है ही, liver shots मारता है वो. He throws a lot of elbows, master of throwing elbows, spinning elbows, slicing elbows, double elbows. He mixes it up also. जैसे legs kicks का fake देके he throws elbows and vice versa as well. Long guard से elbows. मचीडा को उसके कॉर्नर ने बोला था राइट मारने के लिए ना, जब वो उसके किक्स काउंटर कर रहा था बार बार, तो किक दिखा के राइट मार दियो, पर उसने वहां से राइट की रेंज से भी एल्बो टिका दी थी। एल्बो था, हैंड था? एल्बो था, ये था फोर आर्म टाइप उसने, सो ही वाज कैचिंग लेग किक्स में काउंटर कर रहा था मचीडा, सो उसका काउंटर था, बट आई रिमेंबर इट टू बी द हैंड. ही फेंटेड द किक, हल्का सा फेंट, वो भी सटल फेंट, वो फेंट इन इटसेल्फ इज एन आर्ट, and then he threw the hand. That's what I remember. मेरे को ऐसा याद है कि थोड़ा सुपरमैन टाइप था, बहुत ही लाइट सुपरमैन टाइप था, और राइट की वो ख़त्म हो गई थी रेंज, तो उसने मिड उसमें एल्बो ट्रांसफर मतलब चेंज कर दिया था वहीं के स्प्लिट सेकंड में, जो भी उसको टाइम था वहाँ पे, तो ऐसे थोड़ा सा सुपरमैन टाइप था, फिर उसने वो मार दिया। एक वो भी सुना है मैंने डीसी का, when he's away he's kicking, when I come close he's kneeing. क्या करूँ मैं? भाई तो कॉम्प्लान भी जाके लंबा हो गया। But this is something that I would like to learn, कि बंदा दूर है तो मारते रहो, just keep spamming kicks. बंदा, he thinks about throwing punches, you throw, because I have more range, I throw my knees to the body, flying knees, दूर रखो। तो for someone like DC, उसका क्या गेम प्लान होना चाहिए था जॉन के अगेंस्ट? आई डोंट नो यार, रेसलिंग होना चाहिए था, वो तो कर ही नहीं पाया। रेसलिंग जॉन जोन्स ने उसको गिरा दिया। नहीं, जॉन जोन्स डीसी से नहीं हार सकता, सीन ही नहीं है। देख जब थोड़े जिनके पास थोड़ा रेंज है ना, टू बी ऑनेस्ट वो लैंड तो कर रहा था डीसी, ओवरहैंड और जो भी वो नीचे से जो भी स्ट्राइक्स मार रहा था उसके लग तो रहे थे, अपर कट्स लग रहे थे क्लिंच में। डीसी का तो क्लिंच गेम ही है पूरा। बट आई फील जिनके पास रेंज है, जैसे डोमिनिक रेस, गुस्ताफसन एंड जो भी थियागो सांतोस, इन्होंने बॉक्सिंग में आई थिंक ज़्यादा किया। फिर से बंद हो गया। लॉन्ग रेंज वाले वे पोजिंग बिगर थ्रेट टू जॉन। कॉनर मैकग्रेगर भी यही कह रहा था कि भाई ये सारे छुटके हैं जो 145 पे इनका तो ऐसे you need to have some range, some length to come at कॉनर me. मैकग्रेगर का भी लेफ्ट जो है वो, it's a game of, when we say it's a game of inches, we're not talking about just space, we're also talking about your limbs, elbow कहाँ है, shoulder कहाँ है, जो physiological, जो आपकी बॉडी है उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है ना। लेंदी तो है कॉर्नर में, जुजुत्सु में भी। जुजुत्सु में मेरे को लगता है छोटे हाथ पे है तो ज़्यादा सही है, लंबे वाले पकड़े जाएंगे। गलत गेम प्लान है वो, मतलब इन द सेंस द गेम प्लान इज डिफरेंट फॉर शॉर्टर पीपल एंड फॉर लॉन्गर पीपल।
मैंने काफ़ी स्टडी किया है इसमें बिकॉज आई एम वन ऑफ द लाइटर वंस इन द जिम, तो longer arms makes my dars more lethal. Shorter people उनको गिलेटिन पकड़ते हैं वो लोग, क्योंकि with my long arms if I take a guillotine स्पेस रह जाता है कभी कभी. तभी जॉन गिलेटिन मारते ज्यादा उसके नहीं, मैं लंबे उल्टा बोल रहा हूँ, उसका वो टेक्निक होगा. अच्छा, गिलेटिन में मैं ये बोल रहा हूँ छोटे आर्म वाला बंदा बिकॉज देन वो एकदम रैप हो जाता है. ऑफ कोर्स यू हैव टू पास द चिन, बट लॉन्गर आर्म्स में स्पेस रह जाता है तो हैंड फाइटिंग हो जाती है. पीपल जस्ट sneak their arm and they start hand fighting. So longer limbs में triangles better होता है थोड़ा सा. अगर छोटे पैर है तो ट्राइंगल कैसे लोगे? टाइप्स अगेन, एक बार उनको मिल गया ट्राइंगल, देन इट इज सुपर टाइट. जैसे अगर राजीव के ट्राइंगल इज सुपर टाइट, but then to get to that position is difficult, slightly difficult for him because of shorter limbs. मेरे को ये आर्म इन गिलेटिन कभी समझ नहीं आया. मुझे भी नहीं आया. कि मेरे को तो वैसा लगता है बस सिर्फ नेक वाला ही सही है. आर्म इन पता नहीं कैसे यूएफसी में भी करते हैं लोग, मैंने देखा है. I think this is blue belt, purple belt level. So it's basically their hand configuration, and they're able to time it. I think timing is one, and second is arm configuration, and how to get to that position, which will come with time. Because I've also tried learning arm in guillotines from watching YouTube, but nahi hota. On the mats, it's difficult to translate it. और सीधा बेयर नेक कैच करना भी आसान है, आर्म इन कैच करना थोड़ा आसान है. मैं तो किया नहीं बहुत टाइम से. मुझे तो पता नहीं कुछ. नहीं, बहुत लोग हैं आर्म इन मारते हैं बहुत सॉलिड. बट आई थिंक इट्स अ black belt levels. I mean, I don't know. Of course, there must be some white belts who can catch an arm in guillotine. But गिलेटिन में फंसे बहुत टाइम हो गया मुझे. नहीं लिया. नहीं, गिलेटिन में नहीं फंसता. अभी कौन सा है फेवरेट? फंसता नहीं हूँ. अच्छा, गिलेटिन में फेवरेट submissions though, so it comes in phases. So there was a time I was getting guillotines a lot. I was catching people in my guillotine. It's mostly on white belts. If they take a shot exposing their necks, mostly it was that. I also had a phase of triangles. I was catching people in a lot of triangles. I catch nowadays. I catch a lot of people in dars, and I catch a lot of people in arm bars. डार्स मैं कभी मतलब मेरे को डार्स बहुत पड़ते थे. बाकी तो मैंने भी आपको मारे हैं. हाँ, मैं कभी आई नेवर सॉ इट कमिंग. जब भी आता है ना मेरे को डार्स कभी पता ही नहीं चलता शायद डार्स आ रहा है, क्योंकि मेरे को देना भी नहीं आता था. और कोई आके चिपका जाता था. क्योंकि आपके विजन के सामने नहीं हो रहा है. वो हाथ, जब आपका ध्यान कहीं और है तब हाथ स्लिप इन हो रहा है, तो इसलिए नहीं दिखता है. मुझे भी नहीं दिखता था, बट एक दो बार फंसा तो मोमेंट आई फील समथिंग, your body will react automatically. It'll try to defend, but you only learn it by getting caught in those submissions a lot of times. Yeah. So clinching, very lastly, clinching में उसके पास कुछ strikes हैं which he does quite excellently. ओशोतोगारी ट्रिप्स करता है काफ़ी. ओशोतोगारी करता है. ससाई कोमीज फुट ट्रिप्स. he does harai goshis, uchimatas as well. और फिर एक बार वहाँ से ग्राउंड एंड बाउंड शुरू हो गया, फिर तो विशियस. ग्राउंड एंड बाउंड तो विशियस है उसका. और कौन करता है यार इसके? खबीब करता है थोड़ा. खबीब का पर विशियस नहीं है ग्राउंड एंड बाउंड. खबीब का स्मॉदरिंग है. हाँ, डुबा देता है. खबीब का ऐसा है कि साले हट जा. बहुत देर हो गई, या तो टैप कर दे या तो हट जा. और इसका तो वैसा है भाई, इसका वही है जान से मारने वाला.
और कौन है ग्राउंड एंड पाउंड में टॉप में, कौन हुआ? ये इस्लाम तो नहीं है, आई थिंक इस्लाम को नहीं मानता मैं। कौन लगता है? मेराब। मेराब भी वैसा ही है, स्मदर टाइप का, पेस पुट कर देता है मेराब, उसको मैच नहीं कर पाते। पर ऐसा नहीं है कि जॉन के साथ ही ऐसा है, ग्राउंड पे ले गया तो बहुत बुरी तरह ही मारेगा। बाकी लोगों के फेजेस में आते हैं, कुछ लोग कभी कभी फेल देते हैं ग्राउंड पे लेटा के। जॉन जोन्स का अलग ही लेवल का ग्राउंड एंड पाउंड है। हम्म, एल्बोज बेसिकली कहाँ कहाँ से निकालता है वो, ओवरहैंड एल्बोज, ये शॉर्ट एल्बोज, he will hold your wrist control and then throw an elbow. Amazing. So I wonder ये बाकी fighters देख नहीं रहे क्या ये क्या कर रहा है टाइम्स? अरे वही ना, खबीब के पापा वाली बात है क्या? कि गॉड गिफ्ट है भाई इसके पास, हर किसी के पास नहीं होता ऐसे। मतलब नेचुरल है उसका ये सब, ये उसने ट्रेन करके सीखा नहीं है, हमेशा से ही थे उसके, जब से वो आया है तब से। ऐसा नहीं है कि उसने ओवर टाइम ट्रेन करके एल्बोज और नी सीखा है, जब से आया था तब से वो ये सब मार रहा है। नहीं, इनफैक्ट जब मैंने उसकी फर्स्ट फाइट देखी, डेब्यू फाइट यूएफसी की, his striking was not there. He was तब वो रेसलिंग ज्यादा यूज कर रहा था. He उसने was a सुप्लेक्स Greco. मारा था ना शायद फर्स्ट फाइट में। स्टार्टिंग की फाइट्स में मारा होगा उसने, हाँ। सुप्लेक्स बाद में भी मारा आई थिंक, वो ग्रेको सुप्लेक्स जो होते हैं, बट हिज टाइकोंडो वाज नॉट देयर। फर्स्ट फाइट अगर आप देखोगे तो ही वाज हार्डली थ्रोइंग स्ट्राइक्स, कुछ स्ट्राइक्स वो पहले से मार रहा है बट इतना वैरायटी नहीं था उसके पास। बट स्टिल जो भी मतलब इसका गेम है वो नेचुरल है इसको। मुझे ऐसा लगता है कि इसने बहुत मेहनत करी है टू डेवलप, मेहनत तो की है, रेपिटेशंस रेपिटेशंस उसके रेपिटेशंस। बिना तो कुछ होता ही नहीं। बट वो भी नेचुरल पार्ट प्ले करते हैं ना उसमें, जैसे अब मगरेगर तो उसका भी मतलब जब वो था तब किक्स विक्स मार रहा था, और उसकी रेंज ऑफ स्ट्राइक्स बहुत थी पहले 45 में, पर उस जैसे बॉक्सिंग में गया उसकी स्ट्राइक की रेंज कम हो गई, वापस जैसे ही आया काउबॉय के साथ, किसके साथ आया था, रेंज उसकी कम होती गई है। McGregor का peak was before his match with Mayweather only. I think that was his peak. तब उसकी रेंज बहुत थी स्ट्राइक्स की, उसके बाद उसकी कम होती गई है। वो जो आप बोल रहे हो वो तो है ही कि रेपिटेशंस, प्रैक्टिस, मेहनत, वो तो है ही। बट नेचुरल गेम भी होता है लोगों का, और किसी के नहीं चलते होंगे इतने, है ही नहीं किसी की रेंज की एल्बो मार दे दूर से, दूर से नहीं मार दे किसी। शॉन ओमैली की है ऐसी रेंज थोड़ी लंबी अपने डिवीजन के हिसाब से, तो मारता है अच्छे से, टिप्स मारता है। पर एल्बोज वो भी कम यूज़ करता है, वो भी नहीं करता ज़्यादा यूज़, पता नहीं एल्बोज क्यों नहीं यूज़ करते हैं लोग। और elbows they're safer than hands because आपके हाँ, hands तो you can damage your hands. Elbows. पता नहीं, पीटर यान मारता है थोड़े बहुत। Peter Yan is an amazing fighter. I पीटर really यान enjoy him की fighting. शार्प एल्बोज है। बस अभी उसका लेटेस्ट क्या था, किसके साथ था, मजा आया देख के। क्या नाम है उसका, फिगरेडो। फिगी देखी आपने? saw the fight? नहीं देखी वो। It was a very good, मतलब मुझे मजा आया। It went the distance I believe. हाँ, हार गया But, फिगरेडो। फिगी भी अच्छा फाइटर है हाँ, बट जीत गया था पीटर यान। फिगी मस्त है, गांव का लड़का है फिगी तो सामने वाला जीत भी जाता है कंधे पे उठा के एल्बोज ओलिवेरा मारता है थोड़े बहुत। हाँ, ओलिवेरा भी सारे स्ट्राइक्स यूज करता है। हाँ, ओलिवेरा भी काफी मुay thai taekwondo यूज करता है, बट ओलिवेरा I doubt whether he'll be champion again. अभी उसकी किसके साथ थी लास्ट फाइट, माइकल चैंडलर के साथ ना। चूती के साथ साला पूरी फाइट पिटा, एंड में WWE मूव करके दो बैक ऑफ द हेड हैमर फिस्ट मार रहा है। पर वो तो है उसमें 5 राउंड्स के बाद भी खड़ा हो गया उसको फीट पे लेके, फिर से खड़ा हो, दम तो है उसमें, एक्सप्लोसिव तो बहुत है यार वो। स्ट्रॉन्ग है भाई लौंडा, वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इस ऑस्ट्रेलियन क्या नाम है इसका, डैन हुकर को जो नॉकआउट किया था, हल्का सा टच हुआ था,
चिन और वो हिल गया पूरा टोनी फर्गसन की वो पिक्चर कितनी फनी है जिसमें उससे किक मारी थी फ्रंट किक। चिनी अंदर से बुढ़ा बन गया था एकदम से 70-80 साल का किक मार के। बट चैंडलर यार क्या उसने करता क्या है वो अपनी फाइट्स में, और फिर कॉल आउट भी कर रहा है हारने के बाद। ठीक है उसकी गाड़ी जैसे चल रही है सही चला रहा है ठोक At पीट least के। again as a fan we want fights to be more competitive. हम्म We want the best versions to turn up, तब मजा है। चैंडलर आई डोंट नो क्या थोड़ा टेक्निक छोड़ देता है। रेसलर भी तो है ना वो, ऐसा But बोलते then हैं। he rarely uses his wrestling. हाँ I think uh, there's a mental barrier है कुछ। रेसलिंग में नहीं, किस चैंडलर में। किस चीज़ के लिए? My view is that he performs exceptionally in training rooms, हाँ but when क्राउड के सामने inside the आके cage, नहीं crowd का भी नहीं है। I don't know, I cannot exactly pinpoint his shortcomings, but he doesn't perform at the technical peak of his ability. एंटरटेनर है वो, ट्रेनर मतलब तो है, एंटरटेनर यही है कि टफनेस दिखा रहा है, मार खा रहा है और इज स्टिल पर इस हो सकता है Still कि going. इसको जितनी भी इसकी यूएफसी में आने से पहले भी ये काफ़ी सारी वॉर्स में था ना, वहाँ पे बेलाटोर में चैंपियनशिप फाइट इसकी, उसमें कई बार बहुत जीता है पिटा है, पर बहुत अच्छे से पिटा है फिर भी जीता है, तो काफ़ी वॉर्स में रह चुका है ये, तो वो भी अफेक्ट करता होगा। पर जॉन में अगर देखो, जॉन जोन्स से कंपेयर करो तो इसके भी कितने सारे, गस्ताफसन का ख़त्म हो गया, डोमिनिक रेस सेम नहीं था उसके बाद, सैंटोस सेम नहीं था उसके बाद, डीसी भी सेम नहीं था उसके बाद। डीसी ने स्टीपे को हरा दिया था एक बार, पर फिर पिटा ही था स्टीपे से भी। But- नहीं Daniel Cormier, Stipe Miocic second is one of my favorite fights, where he makes that adjustment to go to the body. 13-14 liver shots high. वो फेवरेट तरीका है किसी One of my favorite fights. मोटे को, सबसे सही तरीका है मारने का पेट में मुके। नहीं, बट फर्स्ट मैच वो इन सेकंड्स जीत गया था, फर्स्ट जो जब टाइटल। क्लिंच में ही मारा था उसने उसे। हाँ, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि जॉन जोन्स को ये जो वॉर्स के, जो भी वॉर्स हुई हैं इसकी, वो भी अफेक्ट नहीं करती इसको। ये कम बीटिंग कम लेता है ना, हिट्स कम लेता है ये। हाँ एक बार मैं देख लेता हूँ। कितना टाइम हो गया भाई? ओ भाई, क्या हुआ? 1.5 hours होने वाले हैं। डैम तो रैप अप करें फिर। यू आर राइट ब्रो। रैप मैं अप। बोल रहा था कहाँ, तो 30 मिनट्स बोल रहा था। अरे भाई मेरे को लगा और हमने कुछ ज्यादा खींचा भी नहीं है, मतलब हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए जो बना के लाए थे। मैं यार I like these things, yeah. Hmm. I like to study. I don't want to give a surface level analysis of my study of John Jones. I want to do a good job, and of course, so many excellent points that came from you as well. अबे क्या हंस रहा है? ठीक है, नहीं, I thanks. think वो टीम वर्सेस टीम वाला मैं मेरे दिमाग में नहीं आया. That was a great point. और भी थे, सही था, अच्छा था, I liked it. So close भाई, कैसा, how do we close?